I would like to invite Dr. Amir Alauddin. He is serving as assistant professor in chemical department of Kafute. So we are going to start. Please listen carefully and take salad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि डॉक्टर शाहिद साहब ने बता दिया है मेरा नाम इंट्रोडक्शन में कि माय नेम इज आमिर अलाउद्दीन एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग and today we are going to learn the reference management using Zotero software. So I would start with a formal presentation which consists of the outline. First of all, I would like to discuss the objectives of the talk. Then I will move on to the introduction, terminologies and softwares. Finally, I will show you how to install Zotero and integrate it with the word processor plugin. And finally, I will tell you how to cite and reference the research papers in the article you are going to write. So let's start with the objectives. The objectives of this session is to introduce the students with terminologies and reference management, and then to introduce with various reference management softwares. And then I will tell you how to install Zotero, its web browser extension, and the word processor plugin. To learn the method of importing references in Zotero main library, because when you are going to write your manuscript or any academic writing, I will use the general term of academic writing. When you are going to write in your academic writing, you have to cite the references that you are taking this work from that researcher or from that place or from that book. Then you have to import the citation and then use the citation in your research paper. So we will discuss that in detail, and then finally I will tell you how to change the styles of citation and references as well. So let's start with the introduction. Academic writing. Academic writing क्या है? Academic writing की जो formal definition है ये है कि it is the writing style. ये writing style के बारे में है जो पहली चीज है कि ये formal, unbiased, clear, precise, focused, well structured, well sourced, correct and consistent presentation of research results to the academia. यानी जो पहले मैंने सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर बताई है कि फॉर्मल होती है, बिल्कुल अनबाइस्ड, यानी इसके अंदर कोई बाइस्ड ना हो कि हम अपना झुकाव किसी एक तरफ दिखा रहे हैं क्योंकि मुझे ये चीज पसंद है, इस तरह की स्टडी को रिसर्च स्टडी नहीं कहेंगे। अनबाइस्ड हो, क्लियर हो, प्रिसाइज हो, फोकस्ड हो कि आपका जो टारगेट था, आपका काम था, वो फोकस है किसी एक एरिया के ऊपर है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा ब्रॉड कर देते हैं तो वो समझने वाले के लिए मुश्किल हो जाता है कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है, कोई एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ हो। वेल सोर्स्ड के मतलब आपने ये बताया हुआ कि जो मैंने काम किया है इसका बैकग्राउंड ये है, इसके अंदर ये वाले रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े थे, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट करके ये काम करने के काबिल हुआ। जब हम एकेडमिक राइटिंग की बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर जो हमारे रिसर्च जर्नल्स हैं उनकी तरफ से जो लीगल इश्यूज राइज होते हैं वो है एथिकल इश्यूज। वो आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा को नॉर्मली चैलेंज नहीं करते, आपकी राइटिंग को चैलेंज नहीं करते। ज्यादातर जो जर्नल्स होते हैं, केसेस इवन हो जाते हैं कोर्ट्स के अंदर, वो किस चीज के ऊपर होते हैं कि आपने जो काम किया है उसके अंदर किसी शख्स का किए हुए काम को यूज किया, लेकिन आपने अपने पेपर में मेंशन नहीं किया कि मैंने इस काम को यूज करते हुए अपना काम किया है। तो दिस इज एथिक्स कि आपने अगर किसी शख्स के काम को यूज करते हुए अपना काम आगे प्रोसीड किया है, मजीद कोई नई फाइंडिंग की है बेस्ड ऑन सम प्रीवियस वर्क, तो उस प्रीवियस वर्क को आप अपने काम के अंदर मेंशन करें। सो दिस इज एथिक्स इन राइटिंग। एंड in fact I was thinking that this session is going to be about 3 to 4 hours, but since the session is of 2 hours, so I will quickly skip all the slides. I will move on directly to the installation of Zotero and then how to use it. So citation और जो important terminologies है वो मैं आपको सिर्फ बताता जाऊंगा। सबसे पहले ये कि रेफरेंस मैनेजर है क्या। जब आप कोई एक रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं या आप कोई एकेडमिक स्टडी स्टार्ट करते हैं तो उसके बिहाइंड में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़कर आते हैं। बाज़ ऐसा होता है कि एक काम करने के लिए आपने 3-4 बुक्स में से हेल्प ली होती है, 15-20 रिसर्च पेपर्स में से हेल्प ली होती है, कुछ वेबसाइट्स में से हेल्प ली होती है। तो वो सारी की सारी को मैनेज करके किसी एक जगह रखना और फिर ये रखना कि इसमें से ये काम लिया, इसमें से ये काम लिया,
इसको मैनेज करना, इस सारी चीज को, इंफॉर्मेशन को, ये रेफरेंस मैनेजमेंट है। अब अगर हम बाई हैंड इस काम को करें, दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि कुछ रिसर्च पेपर्स ऐसे होते हैं, स्पेशली रिव्यू पेपर्स, जिसके अंदर आपके 200 साइटेशन होती हैं, मोर देन 200 साइटेशन होती हैं, कि मैंने ये 200 रिसर्च पेपर में से पढ़कर अपना काम किया है। तो उन सारों को बाई हैंड मैनेज करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर लिखे गए। ये तकरीबन अबाउट 25 ईयर्स अगो ये काम स्टार्ट हुआ था। तो अब हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनके जरिए हम जो है ना अपना ये रेफरेंसेस को मैनेज करते हैं। उसके बाद दो टर्मिनोलॉजी हमारी और है, साइटेशन एंड रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी। साइटेशन और रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी, इसमें फर्क क्या है? इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कुछ पेपर्स दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मीनिंग है। ये देखें, ये एक जो है ना मैंने रिसर्च पेपर खोला आप लोगों के सामने। इसके अंदर ये जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं 1, और ये नंबर नजर आ रहा है 2, इसी तरह ये नंबर नजर आ रहा है आपको 3। ये क्या है? ये आपने बताया कि ये मैंने पेपर नंबर 1 में से इंफॉर्मेशन ली है। ये जो आपने पैराग्राफ लिखा है, नैनो टेक्नोलॉजी हैज गेन्ड ह्यूज अटेंशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपने लिखा है, ये आपने इस पेपर नंबर 1 को पढ़कर ये वाली इंफॉर्मेशन ली है। उसके बाद अगली जितनी भी इंफॉर्मेशन है 2 से पहले पहले तक, वो आपने कहाँ से लिया है? रिसर्च पेपर या बुक नंबर 2। ये नंबर 1 नंबर 2 कहाँ जो लिखे हुए हैं यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर, ये साइटेशन है। दिस इज कॉल्ड साइटेशन, यानी आपने इसको सिर्फ साइट कर दिया। लेकिन ये 1 नंबर जो है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 1, ये किस ऑथर ने लिखा, कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ, जर्नल का वॉल्यूम नंबर क्या था, इशू नंबर क्या था, इसको DOI जो लगा वो कौन सा था, पेज नंबर कौन से थे, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर ये सारी चीजें फर्ज करें हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो एक पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद एक ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि हमारे पढ़ने के फ्लो को ब्रेक कर देगी। तो जो इनकी सारी डिटेल्स हैं उसको हम कहते हैं रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी। वो सबसे एंड में, जो पेपर का जो एंड होता है, जहाँ पे पेपर खत्म होता है, ये वहां पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये देखें, ये रेफरेंसेस दिए हुए यहाँ पे, ये जो रेफरेंसेस हैं आपके, इसके अंदर जो पेपर नंबर 1 आपने साइट किया था, उस साइट का रेफरेंस ये है कि हसन एस इसने लिखा, 2015 में लिखा। ये एक रिव्यू आर्टिकल था नैनो पार्टिकल्स के अंदर, जिसका टाइटल और सब टाइटल यहाँ पे मौजूद है। जर्नल का नाम ये है, वॉल्यूम नंबर ये है, और पेज नंबर 9 से 11 थे ये जो रिसर्च पेपर था। तो जो आप बॉडी ऑफ टेक्स्ट के अंदर जो मेंशन करते हैं कि ये कौन से पेपर नंबर से या कौन सी बुक नंबर से लिया, दैट इज साइटेशन। और जो पेपर के एंड में आपने बताना होता है कि ये कौन सी बुक है, कौन सा जर्नल है, दैट इज रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी। ठीक है। अब दूसरी चीज जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली है, अगर मैं इसी चीज को देखूं कि मैंने रेफरेंस नंबर 1 यहाँ पे लिखा, ये रेफरेंस नंबर 1, रेफरेंस नंबर 2, तो ये हर जर्नल का फॉर्मेट डिफरेंट है। कुछ जर्नल्स कहते हैं कि आपने ऑथर का नाम और जिस ईयर में ये पब्लिश हुआ वो मेंशन करना है 1 और 2 की जगह। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दूसरा पेपर दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर स्टाइल डिफरेंट है, यहाँ पर उसने सुपरस्क्रिप्ट के अंदर 1 लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम राइट कॉलम, ये तो लेफ्ट कॉलम की मैंने बात की ना, अगर हम राइट कॉलम में आ जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं 11 12, ये बजाय इसके कि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखता, यहाँ पर उसने सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ है 11 और 12। तो देखें साइट करने का स्टाइल चेंज हो गया। एक और पेपर के अंदर देखते हैं, उसके अंदर मजीद डिफरेंट स्टाइल है। ये देखें, ये उसने किया हुआ है फाइनमैन 1960, यानी ये इंफॉर्मेशन फाइनमैन ऑथर था जिसने रिसर्च पेपर लिखा था और 1960 में लिखा था। ठीक है। तो ये जो साइट करने का स्टाइल और जो नीचे रेफरेंस लिखने का स्टाइल है, ये हर जर्नल का डिफरेंट है। अब कहानी ये है कि हमने सारे रेफरेंसेस को मैनेज भी करना है
उनको रिसर्च पेपर में साइट भी करना है और उसके बाद उसके रेफरेंसेस भी डालना है। बाई हैंड अगर हम ये काम कर रहे हैं, दिस विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट होगा, इसको पहले देख लेते हैं। ये देखें, ये जो रिसर्च पेपर है इसके अंदर टोटल उसने जो रेफरेंसेस यूज किए, उसने 15 रिसर्च पेपर्स इंक्लूडिंग बुक्स उसने शामिल की कि इन 15 जगहों से मैंने स्टडी करके अपना काम किया है। अब इस दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। इसमें अगर आप नंबर ऑफ रेफरेंसेस देखेंगे तो ये देखें कि उसने 28 यूज किए। और ये उसके बाद ये अगला, इसको अगर हम देखें, ये एक इतनी लंबी लिस्ट है जो मैंने इसको जब देखा था तो ये तकरीबन 124 साइटेशंस है। 124 साइटेशंस एंड रेफरेंसेस है इस पेपर के अंदर। और अगर आप रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ते हैं या लिखते हैं, उसके अंदर आपको 250, 300 रेफरेंसेस देने पड़ते हैं कि कहाँ से मैंने पढ़ के ये लिखा है। तो अब फर्ज करें कि आप पेपर लिखते हैं और उसके बाद आप जो है ना किसी एक्सपर्ट के पास लेकर जाते हैं, जी मैंने ये पेपर लिखा है, इसको रिव्यू करते हैं क्योंकि मैंने जर्नल में सबमिट करवाना है। वो आपको क्या कहते हैं कि आपने जो पेपर लिखा ना, इसमें से ये वाला जो साइट किया हुआ है ना आपने, इसको आप निकाल दें। उसके बाद किसी दूसरे पेज पे जाता है, कहता है इधर आप एक और मजीद साइटेशन ऐड कर दें। अब वो इस तरह के 10-15 जगहों पे आपसे एडिटिंग करने को कहता है कि ये पेपर के अंदर 15 जगह हैं टोटल, यहाँ पर आपने पुराने रेफरेंसेस निकालने हैं कुछ जगहों से, कुछ जगहों पे ऐड करने हैं। अब आपने ये सिंक्रोनसली काम करना है कि ऊपर से साइटेशन को अगर रिमूव किया तो रेफरेंस में से भी वो रिमूव हो, और अगर ऊपर आपने साइट ऐड किया है, साइटेशन डाली है, तो रेफरेंसेस के अंदर भी वो प्रॉपर जगह पर मौजूद होनी चाहिए। इस सारे को 200 या 300 रिसर्च पेपर्स को मैनेज करना, दिस इज नॉट इजी। तो इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। अब मैं सॉफ्टवेयर की अगर आपसे बात करूं तो मैं यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर की। ये देखें, मिसाल के तौर पर मैंने जोटेरो लिखा, पहले सबसे पहला आपके पास है जी, इट स्टैंड्स फॉर जोटेरो। उसके बाद मेंटले, उसके बाद बिबटेक्स, उसके बाद एंडनोट, उसके बाद डॉसियर, उसके बाद रीडक्यू। ये सारे के सारे रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं जितने भी मैंने यहाँ पे शो किए हैं, ठीक है। लेकिन मैं जोटेरो को क्यों प्रेफर करता हूँ, उसकी वजह एक वार है, एक जंग है ये किसके दरमियान, फ्री सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के दरमियान। इनफैक्ट मेरा जो रिसर्च वर्क था पीएचडी का सारा मैंने ओपन सोर्स या फ्री सॉफ्टवेयर यूज किए, क्योंकि उसके अंदर आपको लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता। आप किसी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस परचेज करते हो, साल के बाद वो लाइसेंस एक्सपायर हो गया, आप उस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते। बाज़ों का ऐसा होता है कि वो सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाता है 1 साल के बाद, अब आपके पास पैसे नहीं है, आपका जो काम किया हुआ था वो रुक गया सारा। तो इससे बेहतर होता है कि जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर सारी की सारी एबिलिटीज मौजूद हैं। आपको जो जो फंक्शनैलिटीज चाहिए वो सारी की सारी फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं। तो हम फ्री सॉफ्टवेयर क्यों ना यूज करें। हम दूसरी चीज चलें कि एंडनोट एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, इसका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। आप परचेज कर लेते हैं, उसके बाद अपना रिसर्च पेपर जो है ना जर्नल में सबमिट करवाते हैं, जर्नल की तरफ से आ जाती है जो आपकी एंडनोट की लाइब्रेरी थी ना वो सेंड करें। आपके पास तो वो परचेज भी नहीं है, किस तरह क्लेम करेंगे अपने काम को। सो व्हाट आई प्रेफर इज द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दूसरी चीज, मेंटले एंड जोटेरो, they are exactly same, they are twin brothers, मेंटले एंड जोटेरो। अगर आपने जोटेरो सीख लिया इसका मतलब आपको मेंटले आ गया, क्यों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एग्जैक्टली सेम है, वर्किंग मेथड एग्जैक्टली सेम है। था क्या, जो मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था दैट वाज जोटेरो। जोटेरो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, साइंटिफिक कम्युनिटी ने स्टार्ट किया कि रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए हम अपना फ्री सॉफ्टवेयर लिखते हैं जिसका नाम उन्होंने रखा जोटेरो। 2 साल बाद एक और टीम आ गई, उन्होंने कहा कि हम भी अपना एक अलग से डेवलप करते हैं। उन्होंने जोटेरो का सोर्स कोड उठाया, उसको मॉडिफाई करके मेंटले बना दिया। बेस इज जोटेरो। तो जोटेरो के जो ना, अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट के जोटेरो की इंस्टॉलेशन की तरफ। तो इंस्टॉलेशन के अंदर अब यहाँ पर जो ना सबसे पहले जब आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज करें, बेशक वो मेंटले हो,
बेशक वो ज़ोटेरो हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका अपना गूगल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो इंस्टॉलेशन होती है और जो सारी प्रोसीड होती हैं आगे चीज़ें, वो आपके गूगल अकाउंट के ऊपर जो है ना लिंक्ड हो जाती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है गूगल अकाउंट से लिंक होने का? मिसाल के तौर पर आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं या कोई सोशल साइंसेज के अंदर आपने कोई सर्वे आपने किया, उसकी स्टडी आपने की, उसके बाद आप प्रेज़ेंट करने जाते हैं उसको किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में। वहाँ पर अब आपके पास अगर रेफरेंसेस आपने देखने हो, आपने अपनी प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई करना है, आपने रेफरेंसेस देखने हो, कहाँ से देखेंगे? तो आपका अगर ईमेल अकाउंट गूगल का है तो आप डायरेक्ट ज़ोटेरो की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि कौन-कौन से मैंने रेफरेंसेस यूज़ किए थे। तो इसलिए गूगल अकाउंट का होना ज़रूरी है और उसके बाद आपके जो ना मैं इसकी इंस्टॉलेशन और बाकी सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे बता देता हूँ। जो ज़ोटेरो है उसकी मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये देखें, ये हमारा है ज़ोटेरो। अब मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। मेरा अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर इस पे अकाउंट बना हुआ है। ये देखें, ये मैंने अपने आपको साइन अप होना पड़ेगा। आपको साइन अप होना पड़ेगा। मैं चूँकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मैंने सिर्फ साइन इन किया है। आप पहले साइन अप करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। उस आईडी पासवर्ड के थ्रू आप ज़ोटेरो के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब आप जो ज़ोटेरो है उसके लाइब्रेरी के अंदर है, ये कुछ पेपर्स इसके अंदर ऐड हुए हैं। मैं जो आपको मेन चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ज़ोटेरो के हम मेन पेज पे जाते हैं। जब हम मेन पेज पे जाएंगे वहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन और डाउनलोड लिंक सारी चीज़ें मिलेंगी। ये देखें, ये ज़ोटेरो का है मेन पेज। वेबसाइट है www.zotero.org zotero.org। तो इधर से आप डाउनलोड का जो लिंक है इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दो चीजें, एक तो है आपके पास ज़ोटेरो 5 फॉर विंडोज, आप इसको जो ना यहाँ से इंस्टॉल कर लें। ये इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखें, ये जो है ना ओके तो ये हमारा ज़ोटेरो डाउनलोड हो गया। इसको हम इंस्टॉल करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, रन। वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। आपने जो विंडोज के तरीके हैं ना इंस्टॉल करने के, दे आर वेरी सिंपल। डबल क्लिक, यस यस नेक्स्ट, ओके यस फिनिश, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो ये आपका देखें। अब मैं इसको फिनिश करूंगा और मैंने इसको चेक किया हुआ है कि लॉन्च ज़ोटेरो नाउ, ज़ोटेरो को लॉन्च भी कर देगा। इसको मैं फिनिश करूंगा तो ये ज़ोटेरो लॉन्च भी कर देगा। आपके सामने आ जाएगा कि ज़ोटेरो लग दिखता किस तरह का है। ये देखें, ये आपका ज़ोटेरो आ गया। ये आपकी ज़ोटेरो की मेन विंडो है, ये वाली। ठीक है, इसके अंदर मेन्यूज दिए हुए, फाइल मेन्यू है, एडिट है, व्यू, टूल्स और हेल्प। ये मेन सॉफ्टवेयर है। अब उसके बाद दूसरी चीज, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जब आप ज़ोटेरो के वेबसाइट पर दोबारा जाएं तो आपको देखें दूसरी, एक तो आपने किया ना डाउनलोड फॉर विंडोज, उसके बाद आपको आ जाता है इंस्टॉल क्रोम कनेक्टर। इंस्टॉल क्रोम कनेक्टर, इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो आपके ये जिस तरह यहाँ पे मेंडले का बटन बना हुआ है ना वेब ब्राउजर के ऊपर, इसी तरह ज़ोटेरो का एक बटन बना हुआ आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर ही। ये जो आपका वेब ब्राउजर होता है इसके ऊपर एक ज़ोटेरो का
बटन बना हुआ आ जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, आपने कोई वेब पेज खोला हुआ है, उस बटन को क्लिक करेंगे, वो वेब पेज की इंफॉर्मेशन को खुद ही सेव कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको भी इंस्टॉल कर लें। अब ये देखें, ये इंस्टॉल क्रोम कनेक्टर है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये इसको ऐड टू क्रोम हम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन। ये देखें, ये ऐड हो गई। ये जो एक फाइल का सा बटन बना हुआ नजर आ रहा है ऊपर आपको, और ये लिखा हुआ है Zotero कनेक्टर हैज बीन एडेड टू क्रोम। Zotero कनेक्टर हैज बीन एडेड टू क्रोम, ये क्रोम के अंदर ऐड हो गई है हमारे अब। ठीक है, अब हम जाते हैं किस तरफ वाला, कि साइटेशंस को इंपोर्ट करने के क्या तरीके हैं। ठीक है, जो हमने सबसे पहला काम किया, देखें ये मेरा जो टॉक का जो मेथड है वो ये है कि कुछ देर के बाद मैं पीछे से दोबारा रिपीट करता हूँ बार बार, ताकि स्टेप्स जो है ना वो जहन नशीन हो जाए। सबसे पहला क्या था कि आपका अपना गूगल अकाउंट होना चाहिए। आपका गूगल अकाउंट होगा तो उसका एक फायदा ये है कि आप किसी भी जगह हो, आप अपने रेफरेंसेस को एक्सेस कर सकते हैं। पहली दफा आपको साइन अप करना पड़ेगा, एक दफा साइन अप हो गए उसके बाद आपने साइन इन होना है हमेशा। उसके बाद आपने क्या किया, जो Zotero फॉर विंडोज था डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया। उसके बाद क्रोम कनेक्टर को आपने इंस्टॉल किया। ये 3 स्टेप, ईमेल अकाउंट, इंस्टॉलेशन फॉर विंडोज, इंस्टॉलेशन ऑफ कनेक्टर, वेब कनेक्टर के वेब पेज के ऊपर ही आपके जो ऊपर ये बना हुआ आ जाएगा सिंबल। ये अब यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज आपको देखें क्या करता हूँ कि मैं विकिपीडिया का कोई आर्टिकल जो है ना वो खोल लेता हूँ। मिसाल के तौर पर रेफरेंस मैनेजमेंट विकिपीडिया। अब ये देखें, कंपैरिजन ऑफ रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब ये मैंने एक वेब पेज खोला, मिसाल के तौर पर आप ये एज्यूम करें कि आप जो स्टडी कर रहे थे ना उसके अंदर इस रेफरेंस को पढ़ने की जरूरत थी। आप जो काम कर रहे हैं वो रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर ही कोई अपना टॉपिक लिख रहे हैं। उस टॉपिक के अंदर आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कहाँ से ली, विकिपीडिया से। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मैंने ये इंफॉर्मेशन विकिपीडिया से भी ली थी, तो इसको किस तरह सेव रखेंगे अपने पास। ये आपके पास विकिपीडिया का मेन पेज खुला हुआ है, जो आपने नीचे से सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली। उसके बाद इसको स्टोर करने का Zotero में क्या तरीका है, ये देखें, यहाँ पर ये बुक का निशान बना हुआ है आपके पास, सिर्फ इसको क्लिक करना है। ये देखें ऑटोमेटिकल आ गया ऑटोमेटिकली, सेविंग टू माई लाइब्रेरी। ये आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो गया, आपने कुछ नहीं करना कि आपको अब याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से ली थी कहाँ से नहीं ली थी। जब आप अपना काम कर रहे होंगे, उसको लिख रहे होंगे, तो आपको सिर्फ ये याद होगा कि मैंने विकिपीडिया से भी एक इंफॉर्मेशन ली थी ये वाली। तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट साइटेशन का बटन क्लिक करके आपने सिर्फ विकिपीडिया लिखना है, Zotero खुद दिखा देगा कि ये वाला था जो आपने डाउनलोड किया था। ठीक है, तो ये जब हम अभी इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त में ये सारी चीजें दिखाऊंगा। अभी मैं बताता जा रहा हूँ, लेकिन जब हम वर्ड फाइल के अंदर लिखकर इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आपको मैं दिखा भी दूंगा कि ये साइटेशंस और रेफरेंसेस को किस तरह मैनेज कर रहा है। एक तो ये तरीका हो गया कि जो आपके वेब रेफरेंसेस हैं, वेब रेफरेंसेस को स्टोर करने का क्या तरीका है। वेब पेज आपने खोला हुआ है, आपको ये पता है कि ये वेब पेज मैंने अपनी राइटिंग के अंदर यूज करना है, इसको मैंने डालना है, तो सिंपली ये जो बुक वाला बटन है इसको क्लिक कर लेना है, ये आपकी लाइब्रेरी में सेव हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका Zotero के अंदर कोई रेफरेंस सेव करने का, वो क्या है। अब मैं चला जाता हूँ रिसर्च पेपर्स की तरफ। ये देखें, ये मैंने एक जर्नल है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का, उसका जो है ना मैं
मेन पेज खोलता हूँ। ये देखिए, ये आपके पास आ गया जर्नल, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल स्ट्रक्चर और लेटेसिस। ये देखें, ये आपके पास जो ना अब कुछ रिसर्च पेपर्स खुल गए हैं। ये ACS की वेबसाइट है, इसमें से रिसर्च पेपर्स आपके पास खुले हुए हैं। पहला कौन सा है? ट्यूनेबल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थिन फिल्म्स कंट्रोल्ड बाय द इंटरफेस ट्विस्ट एंगल, पहला पेपर। उसके बाद ये दूसरा पेपर, उसके बाद ये तीसरा पेपर। इस पूरे पेज के ऊपर डिफरेंट रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये जो ज़ोटेरो का बटन बना हुआ है, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये क्या करेगा, ये इस पेज के ऊपर जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं सबकी लिस्ट आपको दिखा देगा कि ये वाली लिस्ट है इस पेज के ऊपर, ठीक है। इसने क्या किया, इसने जो आपका मेन पेज है ना जर्नल का, वो खोल लिया। उसके बाद आपने सिंपली ज़ोटेरो का बटन क्लिक करना है, जो आपके वेब इंपोर्टर या वेब ब्राउजर के ऊपर बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। ये बटन क्लिक करने से होगा क्या, इस पेज के ऊपर जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं उनकी लिस्ट आपको शो करवा देगा। ये देखिए, ये सारे पेपर ये वाले हैं जो कि इस पेज पे मौजूद हैं। अब आप ये चाहते हो कि आप जो है ना इंपोर्ट करो इसमें से रेफरेंसेस को। आपने कहा कि जी आपने ये वाला पेपर जो पहला है ये यूज करना है, तीसरा करना है, और लास्ट पेपर जो है ये मैंने यूज करना है। ये मेरे काम के पेपर है, मैं इनको पढ़ूंगा, इनसे अपना काम भी करूंगा और इनको फिर मैं साइड भी करूंगा जब अपना रिसर्च पेपर लिखूंगा। तो इनको आपने सिलेक्ट किया, इसके बाद आपने ओके किया, तो ये देखें इसने 3 पेपर्स का सारा डेटा लाइब्रेरी के अंदर ऐड कर दिया। अब ये देखें, हम अगर ज़ोटेरो को ओपन करते हैं तो ये देखें कंपैरिजन ऑफ रेफरेंस मैनेजमेंट, ये विकिपीडिया वाला है जिसने सेव किया है। उसके बाद एलिमेंट मैपिंग, थर्मल डीकोहेरेंस एंड थर्मल ट्यूनेबल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये सारे रिसर्च पेपर का जो इंफॉर्मेशन थी वो इसने ऑटोमेटिकली अपने पास स्टोर कर ली। ये स्टोर हो गई है इसके अंदर ज़ोटेरो के अंदर। तो ये दूसरा मेथड हो गया रेफरेंसेस को स्टोर करने का। सबसे पहले गूगल अकाउंट साइन अप, नेक्स्ट इंस्टॉलेशन फॉर विंडोज, नेक्स्ट इंस्टॉलेशन फॉर क्रोम कनेक्टर या वेब ब्राउजर प्लगइन भी कहते हैं इसको। चौथे नंबर पे आपने क्या देखा कि अगर किसी वेबसाइट को रेफरेंस के तौर पे स्टोर करना है तो उसका क्या तरीका है, वेबसाइट खोल ली, ज़ोटेरो का बटन क्लिक किया, सेव हो गई। रिसर्च पेपर जिस जर्नल से आप पढ़ रहे हैं उस जर्नल की मेन वेबसाइट खोली, उसमें पेपर्स की लिस्ट आ जाएगी, ज़ोटेरो का बटन क्लिक करें, वो आपके सामने सारे पेपर्स बता देगा कि इस वेब पेज के ऊपर ये वाले पेपर्स हैं। उसमें से अपनी पसंद के पेपर्स आपने क्लिक किए, ओके का बटन क्लिक किया, आपके जो सारे पेपर्स थे उनका डेटा इसने अपने पास सेव कर लिया। उसके बाद तीसरा, ये देखें कि मैं रैंडमली कोई ये पेपर मिसाल के तौर पर जो मैं ओपन कर लेता हूँ, एनाइसोट्रॉपिक नैनो इक्विलिब्रियम लैटिस डायनामिक्स ऑफ ब्लैक फास्फोरस, इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक किया। अब इसके बाद ये देखें कि इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना उसके अंदर एक्सपोर्ट हो जाए मेरे ज़ोटेरो के अंदर रिसर्च पेपर को। जो ये मैंने पहले तो ये किया था ना, मेन वेब पेज खोला तो उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स थे। उन बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में से मैंने एक रिसर्च पेपर जो है ना सिर्फ उसको क्लिक किया है। तो अब क्या होगा, आपके वेब पेज पे सिर्फ एक रिसर्च पेपर खुला हुआ है, ठीक है। इसको आपने स्टोर करना है ज़ोटेरो में। आप ये RIS एक्सपोर्ट RIS इसको क्लिक करें, साइटेशन, ये देखें इंपोर्ट आइटम्स फ्रॉम pubs.acs.org इनटू ज़ोटेरो, मैं इसको कहता हूँ ओके। ये देखें सेविंग टू माई लाइब्रेरी, ये भी इसने सेव कर लिया। अभी मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ना वो है कि आपने जो रेफरेंसेस हैं उनको लाइब्रेरी में, जो ज़ोटेरो की लाइब्रेरी है
उसके अंदर किस तरह स्टोर करना है, अभी ये चीज चल रही है। ठीक है, एक तरीका वेबसाइट्स को आपने स्टोर करना है, वेबसाइट को ओपन किया, जोटेरो का बटन क्लिक किया, सेव हो गया। जो आपका जर्नल है उसकी मेल वेबसाइट जो है उसको आपने ओपन किया, आपने जोटेरो को क्लिक किया, वो आपको लिस्ट दिखाएगा पेपर्स की, उसमें से अपनी पसंद के पेपर्स को चेक बॉक्स को टिक करें और ओके करें, वो इंपोर्ट हो जाएंगे। तीसरा, सिंगल पेपर को अगर आपने इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर इंपोर्ट साइटेशन की जो ना बटन दिया होता है इसको क्लिक करेंगे तो वो जोटेरो लाइब्रेरी के अंदर उसको सेव कर देगा। उसके बाद थर्ड मेथड, ये देखें, मैं अब कोई और पेपर खोल लेता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला है पेपर। अब इसके अंदर चौथा तरीका क्या है रेफरेंस को ऐड करने का, हर पेपर का एक DOI नंबर होता है, हर पेपर का एक DOI नंबर होता है। आई थिंक ये 2000 के बाद स्टार्ट हुए थे या 2002 के बाद, एनी हाउ ये जो DOI नंबर होता है इसके थ्रू भी आप साइटेशन को, रेफरेंस को जोटेरो के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका क्या तरीका है कि ये आपको मे भी नजर ना आ रहा हो, इसको एनलार्ज कर देता हूँ। ये देखें, अब आपको नजर आ रहा होगा, ये जो दिया हुआ है https://doi.org/10.21-acs.nanolet0C101579, ये जो नंबर है ये ORG के बाद से लेकर एंड तक ये हमारा क्या होता है DOI नंबर। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और ये 10.1021 यानी कि DOI.org/ इसके बाद जितना भी कुछ है वो सारा मैंने कॉपी कर लेना है। यहां से मैंने इसको किया कॉपी, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया DOI नंबर को। अब मैं जोटेरो के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर देखें आपको ये एक बटन बना हुआ नजर आ रहा है टूल, इसको कहते हैं ऐड आइटम बाय आइडेंटिफायर, कि जो आइडेंटिफायर है उसके थ्रू ऐड करना। अब DOI में जो आई है ना लास्ट, वो आइडेंटिफायर ही है असल में। ठीक है, तो आइडेंटिफायर से हम ऐड करते हैं इस बटन को, इसको मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स के लिए कहता हूँ मैजिक वैन टूल, कि जादू की छड़ी है ये उसी तरह का सिंबल है ये। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन कौन सी मांग रहा है, ये कह रहा है एंटर ISBN नंबर, DOI नंबर, ये वो है जो DOI नंबर हमने पेपर से अभी कॉपी किया है, PMID, archive IDs to add to your library। अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ वो DOI नंबर जो कि मैंने पेपर से कॉपी किया, उसके बाद मैं एंटर करूंगा, ये देखें ये इसको ऐड कर दिया इसमें। मैकेनिस्टिक इनसाइट इनटू सुपरलेटिव्स, ये वाला जो पेपर है ये ऐड हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद अगला तरीका, बाजों का ऐसा भी होता है कि आप जो है ना डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करते इन तरीकों से, आपको किसी दोस्त ने USB के अंदर PDF फॉर्मेट के अंदर कोई रिसर्च पेपर दे दिया कि यार ये वाला पेपर पढ़ना है, इसके अंदर बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसको किस तरह ऐड करेंगे, उसको ऐड करने का तरीका ये है, मैंने यहाँ पर कुछ पेपर अपने पास में लेकर आया था साथ, एग्जाम्पल के तौर पर ये दिखाऊंगा कि किस तरह ऐड होते हैं। ये देखिए, ये आपके पास एक रिसर्च पेपर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 रिसर्च पेपर्स हैं। इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ कि कोई सा एक पेपर मैंने यहाँ से क्लिक करके पकड़ लिया, इधर लाया और रिलीज किया, ये देखें ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो गया। ठीक है, ये था सिंगल पेपर को इंपोर्ट करना। उसके बाद में क्या करता हूँ, बल्क, आपके पास एक PDF फॉर्म की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसके अंदर 100-150 पेपर हैं आपके पास, सारे के सारे पेपर्स को सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट किया, ये किया, ये किया, इनको होल्ड किया माउस लेफ्ट क्लिक करके, उसके बाद जोटेरो में लाके रिलीज कर दिया। क्या चीज, हाँ सिर्फ ड्रैग करना है, ड्रैग करके छोड़ देना है, वो खुद ही ऐड करेगा। ये देखिए ये ऐड करता जा रहा है।
बिल्कुल रखा जा सकता है। नहीं, इसके अंदर इसकी ऑप्शन है कि आप जो है ना अगर चाहें तो इसकी पीडीएफ फाइल रख सकते हैं। ये देखें ये देखें, मैंने इस पेपर के जो लेफ्ट साइड पे एरो बना हुआ है ना, इसको मैंने क्लिक किया, ये देखें एक पेपर भी जो ना आ रहा है। डबल क्लिक किया, ये देखें उसने पेपर खोल दिया। दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि आपको जो मैं सजेस्ट करूंगा वो ये कि पेपर्स एक अलग फोल्डर में रखें, ज़ोटेरो के अंदर ना रखें रिसर्च पेपर को। हाँ, ये मिक्सिंग की बात नहीं है, वजह सिर्फ ये है कि आपकी जो साइज है ना ज़ोटेरो का, ये इंक्रीज होता जाएगा। फिर अगर आप इसकी जो लिमिट है वो है 250 MB का डेटा स्टोर करने की, अगर आप पीडीएफ रखते जाएंगे, नो डाउट पीडीएफ का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता, किलोबाइट्स के अंदर होता है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका काम इस तरह का है कि पाइल अप होता जा रहा है होता जा रहा है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो पीडीएफ है वो किसी फोल्डर बना लें, उसमें रख लें, इसके अंदर सिर्फ रेफरेंसेस रखने हैं आपने। तो ये देखें यहाँ पर जो है ना एक पेपर ये दिखा दिया, एक मैंने ये इसको क्लिक किया, ये देखें पीडीएफ पड़ी हुई है साथ में, ठीक है। तो दोनों काम हो सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद बुक्स जो है वो भी ऐसी ऐड होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई बुक में मिसाल के तौर पर जो ना है कि मैं वर्ड नहीं हो सकती, नहीं। देखें जो हर सॉफ्टवेयर होता है ना उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, हर सॉफ्टवेयर की अपनी लिमिटेशन होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास वर्ड फाइल होती है ना, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, DOCX, DOCX। अगर आप कोई ऐसी फाइल है जिसकी एक्सटेंशन है TSV, फर्ज करें, अगर आप उसको MS वर्ड के साथ खोलेंगे ना कि ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो नहीं खुलेगी। क्यों? जो इसके हर फाइल के अंदर जो एक हिडन कोडिंग होती है, हर फाइल के अंदर एक हिडन कोडिंग होती है, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ना वो उस हिडन कोडिंग को पढ़ के ये पता लगाता है कि क्या मैं इसको खोल सकता हूँ या नहीं। हर सॉफ्टवेयर के अंदर एबिलिटी होती है कि ये इन फाइल्स को खोल सकता है, बाकियों को नहीं खोल सकता, ठीक है। तो इसी तरह ये जो ज़ोटेरो हो गया, एंडनोट हो गया, मेंडले हो गया, इनके अंदर जो एबिलिटी है ये है पीडीएफ को रीड करने की। क्यों? पीडीएफ का जो मेटा डेटा होता है ना वो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है, सिंपल टेक्स्ट फाइल, उधर से ये मेटा डेटा रिट्रीव करता है असल में ज़ोटेरो। लेकिन जो आपकी वर्ड फाइल होती है उसका मेटा डेटा किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर नहीं होता, वो उसके साथ लिंक्ड होता है, तो इस वजह से उसको कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जिस फॉर्मेट को जो सॉफ्टवेयर रीड कर सकता है वही फॉर्मेट आपने उसको देना। हाँ, वर्ड को पीडीएफ में कर उसका मेटा डेटा बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पर मसला क्या आएगा आपका कि जो वर्ड से आप पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं ना उसका मेटा डेटा सारा नहीं बनता, उसका सारा मेटा कुछ बनेगा, ज्यादातर नहीं बनेगा। तो वो ज़ोटेरो जो ना उस पीडीएफ से सिर्फ वही इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएगा जो कि आपकी जो है ना मेटा डेटा के अंदर मौजूद है। जो रिसर्च नहीं, देखिए पीपीटी जो ना आपका कोई रिसर्च रेफरेंस मटेरियल नहीं है, ये रिसर्च रेफरेंस मटेरियल नहीं है, वो आपका रिसर्च पेपर होता है या बुक होती है या वेबसाइट होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो जर्नल में आप जब अपना पेपर पब्लिश करने के लिए जर्नल को सबमिट करवाते हैं ना अपनी वर्ड फाइल, तो वो उसकी जब पीडीएफ बना दे तो पीडीएफ के अंदर वो बाकी इंफॉर्मेशन खुद से डालते हैं मेटा डेटा की, जो कि आप नहीं डाल सकते। जो पीडीएफ के इंटरनल काम होता है वो एडोब एक्रोबैट रीडर से नहीं होते, उसके लिए आपको जो उसका प्रोफेशनल पैकेज होता है कंप्लीट वो परचेज करना पड़ता है, उसके जरिए आप मेटा डेटा उसके अंदर जो है डाल सकते हैं। तो जर्नल के पास वो मौजूद होता है, वो मेटा डेटा अपडेट करने के बाद पीडीएफ अपलोड करते हैं। अगर डायरेक्ट वो भी अपलोड कर देंगे तो उधर से भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज आपकी पीडीएफ फाइल नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज आपकी पीडीएफ फाइल नहीं है। पीडीएफ फाइल के अंदर जो मेटा डेटा क्या है असल में? मेटा डेटा है कि ऑथर का नाम, इसके अंदर टोटल कितने ऑथर हैं, हर ऑथर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, इस पेपर का टाइटल क्या है, इस पेपर के अंदर कितने पेजेस हैं, इसका वॉल्यूम नंबर क्या है, इसका इशू नंबर क्या है, इसका DOI नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके मेटा डेटा के अंदर मौजूद होती है, जो कि जर्नल वाले क्या करते हैं, ये सारे का सारा मेटा डेटा पीडीएफ के साथ लिंक कर देते हैं, तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन होती है। तो अब तक जो हमने काम किया उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल
अपना गूगल अकाउंट उसके ज़रिए साइन अप किया। साइन अप करने के बाद आपने इंस्टॉलेशन की विंडोज़ के लिए, उसके बाद इंस्टॉलेशन की वेब कनेक्टर की। नहीं नहीं, वो फ्री है, गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं, वो भी जो ना फ्री है। अगर आप आउटलुक के ऊपर जैसे हॉटमेल या आउटलुक एक ही चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट के है ना ये दोनों। मेरे ख्याल यूज हो जाते हैं, आई थिंक यूज हो जाते हैं। हाँ, कर लेगा इंशाल्लाह। तो क्योंकि ये मुझे इस वजह से याद पड़ रहा है कि ड्यूरिंग पीएचडी जो मेरा ईमेल अकाउंट था वो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी का था, जिसकी डोमेन थी gis.ac.kr, तो उसके ऊपर भी बना हुआ था मेरा। हाँ, तो इस वजह से होपफुली उनका बन जाएगा आउटलुक उनके ऊपर भी। एनी हाउ, इंस्टॉल हमने किया जोटेरो का वेब कनेक्टर या वेब इंपोर्टर। उसके बाद हमने क्या किया, साइटेशंस डाउनलोड करने के तरीके देखे। सबसे पहला तरीका कौन सा कि आपने अगर वेब पेज को स्टोर करना है, वेब पेज को खोला, जोटेरो का बटन क्लिक किया, ऐड हो गया। उसके बाद अभी प्रैक्टिस जब वर्ड फाइल, हाँ इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे सर, नो इशू। साइन इन आपका गूगल अकाउंट से आपको पहले अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ये बनेगा जोटेरो की वेबसाइट पे, ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। ये देखें, ये आपके पास मेन वेब पेज है जोटेरो का, www.zotero.org। इसमें जब आप इसको लॉगिन को क्लिक करेंगे तो वो आपसे आईडी और पासवर्ड मांगता है। आपके पास तो आईडी और पासवर्ड अभी फिलहाल है ही नहीं। आप क्या करोगे, आप करोगे रजिस्टर फॉर अ फ्री अकाउंट। ठीक है, रजिस्टर फॉर अ फ्री अकाउंट। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम दोगे या आप अपनी मर्जी से कोई सा भी रख सकते हो। जैसे मेरा नाम आमिर अलाउद्दीन है तो मैं रख सकता हूँ आमिर 7382 अलाउद्दीन, कोई सा भी यूजर नेम। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस दोबारा डालना है, जो आप पासवर्ड रखना चाह रहे हैं वो पासवर्ड रखें, रजिस्टर करें, आपका अकाउंट बन गया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन देने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। आप फिर उसके बाद लॉगिन का बटन क्लिक करेंगे, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो वेबसाइट्स को इंपोर्ट करने का तरीका हमने डिस्कस किया। उसके बाद जर्नल की मेन वेबसाइट पर जाकर हमने जोटेरो का बटन को क्लिक किया, उसने उस वेब पेज के ऊपर जितने भी पेपर्स थे उसकी लिस्ट आपके सामने खोल देगा कि ये वाले रिसर्च पेपर हैं, कौन से इंपोर्ट करने हैं। जो आपके काम के पेपर्स हैं उनको चेक करें, टिक बॉक्स ओके करें, सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक सिंगल पेपर उसको खोला। खोलने के बाद मैंने उसमें जो RIS का बटन था, इंपोर्ट साइटेशन का, उसको क्लिक किया तो वो उस पेपर की साइटेशन को इंपोर्ट कर लेगा। चौथा तरीका कि उसका जो DOI नंबर था मैंने उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये जो मेरा जोटेरो का सॉफ्टवेयर है इसके अंदर ये जो टूल है ऐड बाय आइडेंटिफायर, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे DOI नंबर को पेस्ट करके एंटर किया, वो भी इंपोर्ट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि आपके एक सिंगल रिसर्च पेपर की PDF फाइल को मैंने इसके अंदर ड्रैग किया। उसके बाद मल्टीपल PDF फाइल्स को भी मैंने इसके अंदर ड्रैग किया, वो भी ऐड हो गई इसके अंदर। उसके बाद बुक्स को भी मैं बता देता हूँ कि बुक्स जो है उसको किस तरह ऐड करना होता है आपने। ये देखिए, मैं यहाँ पर एक बुक है उसका नाम लिख देता हूँ। ये देखें, ये मैंने जो है ना एक बुक है, बुक का नाम है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसको मैंने जो है ना ओपन किया और मैंने ये किया कि इसका मुझे ISBN नंबर चाहिए। ठीक है,
मैं अमेजोन की वेबसाइट पे चला जाता हूँ, यहाँ पर इसका ISBN नंबर दिया हुआ होगा, ये देखें ISBN 13 और ISBN 10 ये नंबर दिए गए हैं। इसमें से कोई सा भी एक नंबर, बेशक ISBN 10 ले लें, बेशक ISBN 13 ले लें, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और पहले की तरह ऐड आइटम बाय आइडेंटिफायर को क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं उसको पेस्ट करूँगा ISBN नंबर को, एंटर। अब ये उस बुक का रेफरेंस भी इसने अपने पास ऐड कर दिया, ठीक है। बुक नहीं आएगी, रेफरेंस आएगा, रेफरेंस आएगा। तो ये देखें कि अभी तक जो हमने काम किया वो क्या था, वो सिर्फ इंस्टॉलेशन और इंपोर्ट करने के मेथड्स, ठीक है। उसके बाद एक और काम है जो कि जरूरी होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट करने का मेथड। एक्सपोर्ट किस तरह करना है? एक्सपोर्ट करने का क्या मतलब है कि आपके किसी फ्रेंड के पास जो है ना ये पेपर्स का कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ रेफरेंसेस पड़े हुए, पेपर नहीं है लेकिन पेपर के रेफरेंसेस है उसके पास। वो आपसे ये कहता है कि मुझे ये वाले रेफरेंसेस मैं भेज रहा हूँ, इसकी मुझे PDF फाइल को भेजो जरा, या वो ये कहता है कि रेफरेंसेस भेज रहा हूँ, इनको पढ़ना ही आपके बहुत काम के पेपर है। दूसरा क्या होता है कि आपके दोस्त ने आपसे डिस्कस किया और आप कहते हैं कि मैं भेज रहा हूँ आपको इंफॉर्मेशन कुछ पेपर्स की, वो पेपर्स पढ़ें। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि आपने जो जो पेपर्स आपने भेजने हैं उन पेपर्स को आपने क्लिक कर लिया, सिलेक्ट हो गए, उसके बाद में राइट करूंगा, क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए ये कहेगा एक्सपोर्ट आइटम्स, एक्सपोर्ट आइटम्स, इसको मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर देखें कि किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाह रहे हैं। अगर आप Zotero RDF के अंदर सेव करेंगे तो वो फाइल सिर्फ Zotero खोल पाएगा, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं खोल पाएगा। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको RIS इस फॉर्मेट के अंदर सेव करना है, RIS फॉर्मेट में। उसकी वजह क्या है कि ये जो RIS फॉर्मेट है ये एंड नोड भी रिकॉग्नाइज कर लेता है, मेंडले भी रिकॉग्नाइज कर लेता है, डॉसियर भी कर लेता है और आपका रीड क्यूब भी कर लेता है। बहुत सारे जो है ना वो इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं RIS फॉर्मेट को। तो ये किया आपने, ओके किया, अब आपने इसको सेव करना है RIS फाइल को। आप इसको मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप पर अपने नाम से सेव कर लेते हैं। मैं ये कह देता हूँ आमिर टू जावेद, कि ये आमिर ने जावेद को भेजना है ये रेफरेंसेस, इसलिए मैंने इसका आमिर टू जावेद नाम रखा और मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया। अब जब हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो ये देखें आमिर टू जावेद, ये फाइल यहाँ पे आ गई है। सिंपली क्या करना है, ये आमिर टू जावेद जो फाइल है ये आपने अपने दोस्त को ईमेल कर देनी है। उसको कहना है कि इसको Zotero के अंदर ओपन कर दो। वो क्या करेगा, यहाँ से आमिर डॉट जावेद को होल्ड किया, इधर लाके वो रिलीज करेगा, ये रेफरेंसेस ऐड हो जाएंगे इसके पास। अगर वो आपको भेजता है, सिर्फ आपको भेजता है, आपने भी यही करना है। RIS फाइल को इसके अंदर ड्रैग करेंगे, जो आपके दोस्त ने रेफरेंसेस भेजे वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। देखिए ये जो RIS फाइल बनी है ना, इसके अंदर वो तीनों की तीनों साइटेशन मौजूद है। हाँ वो साइटेशन फोल्डर नहीं आएगा। ये देखें ये अगर आप इसमें से मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 ये 6 सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके जब एक्सपोर्ट करूंगा तो ये सिर्फ 6 फाइल्स का डेटा जाएगा बस। नहीं नहीं फोल्डर नहीं डालना, ये जो सेव होगा ना ये आपकी RIS फाइल सेव होगी। ये देखें जैसे मैंने मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर करके दिखाया है ना, डेस्कटॉप पे जो सेव हुई है ये आमिर टू डॉट जावेद और इसकी एक्सटेंशन है .RIS। हाँ फोल्डर नहीं, फोल्डर नहीं, आपने इसको ड्रैग करना, आपने जो ड्रैग करनी है वो RIS फाइल है आपकी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से देखें इसको व्यू करूँ और फाइल नेम एक्सटेंशंस, ये देखें एक्सटेंशन को मैंने ओपन किया तो ये .RIS है आपकी एक्सटेंशन।
ये RIS फाइल को आपने असल में इंपोर्ट करना है इसके अंदर। इधर से हो यार, मुझे विंडोज नहीं आती, लिनक्स पे काम है मेरा सारा। ये देखें जी, ये मैग्नीफाई ऑन किया है तो ये देखें यहाँ पर अब आपको नजर आ रही होगी, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है ये फाइल aamir2javed.ris। आपने फोल्डर को ड्रैग नहीं करना उसके अंदर, आपने फाइल को ड्रैग करना है। यहाँ से क्लिक किया और इधर ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपके सॉफ्टवेयर में से डिलीट हुआ है और आपका डेटा सिंक नहीं हुआ वो वेबसाइट से, तो फिर हो जाएगा इंपोर्ट। देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि अगर सिंक्रोनाइज नहीं है हुआ ये वेबसाइट के साथ, क्योंकि देखिए इसकी एक और मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जोटेरो की। देखिए मैंने आपको शुरू में ये बताया कि जो आप रेफरेंस सेव करते हैं ना, वो आप किसी दूसरे मुल्क जाकर के जोटेरो की वेबसाइट खोलेंगे ना, लॉगिन होंगे, तो वहां पर आपके रेफरेंसेस आपको नजर आ रहे होंगे। नॉर्मली होता ये है कि आपका सॉफ्टवेयर और जो वेबसाइट है जोटेरो के, उसके ऊपर आपके पेपर सिंक्रोनाइज हुए हैं, जो चीज यहाँ पे वो वहां पे भी है। अगर सिंक्रोनाइज नहीं है और यहाँ से डिलीट कर दिया तो वेबसाइट के ऊपर तो मौजूद है, आप उसको सिंक्रोनाइज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा इंपोर्ट कर देगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। वो क्या है कि पेपर्स जब अपना हम एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं, उस दौरान आपने लिखते हुए किस तरह साइटेशंस को ऐड करना है और किस तरह रेफरेंसेस को ऐड करना है। अब ये फाइनल चीज हमारी रह गई है कि लंबा काम नहीं रहा है, तो यहाँ से मैं कोई वर्ड फाइल खोल लेता हूँ। ये MS वर्ड की मैंने फाइल ओपन की। ये देखें कि यहाँ पर जोटेरो का एक बटन बना हुआ आ गया है वर्ड फाइल में आपके पास। ठीक है ना, ये जोटेरो का बटन क्लिक करेंगे, देखें ये जोटेरो के जो टूल्स थे जिसको यूज करके आपने साइटेशंस और रेफरेंसेस डालने हैं, वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा। जब आप देखें अपना करेंगे ना इंस्टॉलेशन ऑफ जोटेरो फॉर विंडोज, तो इधर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, असल में जो मुझे प्रॉब्लम फील हो रहा था ना, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, मैं विंडोज का यूजर नहीं हूँ, मैं तकरीबन पिछले 8 साल से लिनक्स यूज कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे आदत है, मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ वक्त हो जाएगा या नहीं होगा। मेथड में निकाल लेता, यहाँ पे इंस्टॉल करके आपको दिखा देता, लेकिन अच्छा खुद ही हो गया ये इंस्टॉल। तो जो हमने मेन अगर चीज़ों की बात करूँ, मेन चीज़ें दो डिस्कस की हैं, अकाउंट बना के लॉगिन होना और रेफरेंसेस को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करना, ये दो चीज़ें। ठीक है, अब तीसरी चीज़ वो क्या है, वो है कि आप जब अपना खुद का पेपर लिखते हो या अपनी कोई एकेडमिक राइटिंग करते हो, उसको लिखते हुए आप जो ना अब रेफरेंसेस को और साइटेशन को किस तरह यूज करेंगे अपने काम के अंदर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यार ये इसका वो नहीं चल रहा, ये बोर्ड नहीं चल रहा इसका। कीबोर्ड नहीं काम कर रहा इसका, कीबोर्ड। रीस्टार्ट करना है ऑफिस को, रीस्टार्ट कर लो। और ये इसको काम नहीं करेगा, नहीं काम करेगा, वर्ड नहीं काम करेगा, वर्ड नहीं काम करेगा, तो भी होगा क्लास में एक्सपायर हो गया, इसलिए ये चीज करते हैं। करो मुझे मतलब अच्छा देखें यहाँ पर ये कोई दूसरी बात नहीं है, इम्पोर्टेंट एक जो ना मैं इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ आपसे कि देखिए मैंने शुरू में आपको ये कहा कि फ्रीवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इनकी एक जंग है।
मैं फ्रीवेयर को या फ्री सॉफ्टवेयर क्यों प्रेफर करता हूँ? क्योंकि उसके अंदर आपके प्रॉब्लम्स नहीं है कोई भी। अब मैंने वर्ड फाइल के ऊपर लिखना शुरू किया ना, अभी वो नहीं लिख रहा। मैंने आईटी वालों से पता किया, मैंने कहा जी ये लिख नहीं रहा, तो कहता है कि जी लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। दिस इज अ प्रॉब्लम कि आपका वर्ड प्रोसेसर काम नहीं कर रहा। मैं लिनक्स यूज करता हूँ, उसके अंदर लिब्रे ऑफिस है, उसका लाइसेंस फ्री है, कभी भी एक्सपायर नहीं होता, सारी जिंदगी इस्तेमाल किए जाए। तो जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं उनका ये फायदा है कि आपके सारे काम भी होंगे। लिब्रे ऑफिस, LIBRE, तो ये पता नहीं चलेगा लिनक्स का क्या चीज? लिब्रा ऑफिस नहीं नहीं, विंडोज का है उसका। विंडोज का है, मैं करता हूँ उससे आज। Okay, let's proceed. किसमें? आपने इंस्टॉल किया है जोटेरो?
ओके अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज वो ये कि ये काम जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है अभी, थोड़ा सा ये करके उसके बाद जो है ना हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते हैं, यानी आप लोगों ने खुद से करना है, रेफरेंसेस इंपोर्ट करने हैं और उनको यूज भी करना है वर्ड फाइल के अंदर, ये इकट्ठे करेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद सब इकट्ठे मिलकर करेंगे ये देखिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ राइटिंग। नैनो टेक्नोलॉजी इज द technology of modern age in which particles of nanoscience are studied। ये देखें, ये मैंने एक यहाँ पर जो ना सेंटेंस लिखा, ठीक है, ये काइंडली इस तरह जो ना जरा थोड़ा सा देख लें। इसके बाद हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, यही काम जो मैं कर रहा हूँ आप लोग भी करेंगे, जो जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको मैं एड्रेस करूंगा। ये आपने लिखा, अब आप फर्ज करें कि ये आपने जिस रिसर्च पेपर से लिया उस रिसर्च पेपर को यहाँ पे साइट करना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपने ये देखें जो पहला बटन है इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी टैब के अंदर वो है ऐड या एडिट साइटेशन। तो आपने इस ऐड या एडिट साइटेशन इसको क्लिक करना है। ये देखें आपसे वो स्टाइल पूछ रहा है कि कौन से स्टाइल के अंदर आप ऐड करना चाह रहे हैं, इन स्टाइल्स की तरफ भी मैं आऊंगा। अभी मैं सिर्फ आई ट्रिपल ई को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, उसके बाद में ओके। तो ये देखें अब वो कह रहा है कि भी यहाँ पर जो पेपर है ना जिधर से आपने ये इंफॉर्मेशन दी है उसकी कोई इंफॉर्मेशन दे। मैं कहता हूँ नैनो, ये देखें नैनो के डिफरेंट पेपर्स आ गए जो मैंने इसकी लाइब्रेरी के अंदर इंपोर्ट किए थे। मैं कहता हूँ कि ये जो सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स वाला पेपर था ये था असल में जिससे मैंने ये इंफॉर्मेशन दी है। इसके बाद मैं करता हूँ एंटर, तो ये देखें इसने रेफरेंस नंबर 1 खुद ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक हो गया, ये मेरा सेंटेंस हो गया क्लोज। उसके बाद ये तो देखिए मैंने जो डाली है चीज ये क्या है, साइटेशन है। अब इस साइटेशन का रेफरेंस भी मैं डालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे जाके रेफरेंसेस का सेक्शन बना लेता हूँ। अभी देख लेता हूँ इसको। अब यहाँ पर देखें जिस जगह पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपका रेफरेंस ऐड होगा वो उस जगह होगा जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। रेफरेंसेस के नीचे आप आए, यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अब आपने करना है ऐड एडिट बिब्लियोग्राफी। तो ये क्लिक किया, ये देखें उसने बिब्लियोग्राफी ऐड कर दी है ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया, उसके बाद मैं कहता हूँ कि इट also involves mathematics and कोई सेंटेंस मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन 2 या 3 जगहों से ली गई है फर्ज करें, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐड एडिट साइटेशन, मुझे ये पता है कि जो मैथमेटिक्स का मैंने सेंटेंस लिखा ना इट आल्सो इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स, तो मैंने जिस मैथमेटिक्स की बुक में से पढ़ा था उसका नाम यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ AD एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, देखने उसने खुद बता दिया कि ये बुक है जो कि मैंने लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी इंपोर्ट की हुई है। इसको क्लिक किया, फिर इसके बाद नैनो का जो पेपर था ये रिव्यू आर्टिकल था, इसमें से इंफॉर्मेशन मैंने ली थी। उसके बाद दोबारा ये देखें ये 3 रेफरेंसेस साइट किए मैंने, 3 चीजों को साइट किया है। अब मैं जब एंटर करूंगा तो ये देखें 2 से लेकर 4 तक के रेफरेंसेस भी उसने साइटेशंस भी डाल दी और नीचे देखें रेफरेंसेस भी ऑटोमेटिकली डाल दिए। ठीक हो गया, ये था हमारा कि किस तरह ये देखें कि आप जब कोई भी राइटिंग कर रहे होते हैं ना किसी भी चीज़ की एकेडमिक राइटिंग के अंदर, तो बाज़ों का ऐसा होता है कि आप एक पूरा पैराग्राफ लिखते हैं और उस पैराग्राफ के एंड पे जाके आप बताते हैं कि ये मैंने 4 जगहों से इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। ठीक है, वो आपने पैराग्राफ जो है ना ये लिख दिया,
ये आपका पैराग्राफ लिखा गया। अब इसके एंड पे आपने 3 या 4 रेफरेंस डालने हैं मिसाल के तौर पर, तो करना क्या है, ये देखें, जब भी आपने साइटेशन ऐड करनी है तो आपने करना है ऐड या एडिट साइटेशन, इसको क्लिक किया। अब आपने ये था कि मैंने ये मैथमेटिक्स की बुक में से ली थी इंफॉर्मेशन, देखें उसने खुद बता दिया कि एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इधर से भी ये इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद आपने नैनो पार्टिकल्स का एक पेपर था, उधर से भी। फिर आपको जो है ना देखें कि पेपर का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको ऑथर का नाम याद है कि यार उसमें कोई खान था ऑथर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा खान, तो वो बताएगा कि खान का ये वाला पेपर था। इसको क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे 3 चीजें साइट हो गई है, एक ये और एक ये। अगर आप चाहें यहाँ पे चौथा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ज्यादातर पेपर नैनो के रखे हुए हैं, तो उसी में से मैं ले लेता हूँ ये 4। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखें उसने 1 2 4 5, यानी मैंने पिछले वालों में से भी यूज किए और एक नया यूज किया है मैंने, ठीक है। अगर ये सीरीज के अंदर होता ना 1 2 3, तो वो यहाँ पे एक डैश लगाता, लेकिन 1 2 4 5 ये रेफरेंसेस मैंने यूज किए हैं, और जो इनके अगेंस्ट रेफरेंसेस हैं वो ये डले हुए हैं ऑलरेडी। 200 300 400 जितने दिन चाहे ऑटोमेटिकली काम करेगा। नो 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 नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना। ये देखिए सॉफ्टवेयर जो रेफरेंस मैनेजमेंट के बनाए ही इसलिए गए कि सारे काम ऑटोमेटिकली होंगे। सीक्वेंस आपने बिल्कुल ख्याल नहीं करना, वो जोटेरो का काम है। सिर्फ एक चीज का इंपॉर्टेंट जो ख्याल करना है वो सिर्फ एक चीज का, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए ये रेफरेंस नंबर 2 जो है ना, ये ऑलरेडी आपने यूज कर लिया है, यानी कि ये वाला पेपर है ना, ये जो बुक है एडमिन क्रेजी, ये आपने यूज कर लिया है यहाँ पे एक दफा। जब आप दोबारा इसको आई वांट टू यूज रेफरेंस टू अगेन, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे साइटेशन को, तो आप लिखेंगे मैथ। देखिए मैंने ये वाली बुक यूज की थी ना मैथमेटिक्स, अब इसके अंदर देखिए ऊपर लिखा रहा है साइटेड और ये दिखा रहा है माई लाइब्रेरी। इस चीज को समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है साइटेड और एक है माई लाइब्रेरी। साइटेड का मतलब है कि आप इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हो, ठीक है। और माई लाइब्रेरी इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी यूज तो किया हुआ है, लेकिन आप फिर दोबारा इसको ले रहे हो, तो ये काम नहीं करना। अगर आप एक दफा पेपर में यूज कर चुके हो तो फिर साइटेड वाले को क्लिक करना है, तो फिर ये वो पुराने वाला नंबर ही लगाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये देखिए मैं इसको करता हूँ तो देखिए रेफरेंस नंबर 2 डाला है। यहाँ तक कितने टोटल रेफरेंस हुए थे, यहाँ तक 5। 5 के बाद अगला क्या आना चाहिए था 6, लेकिन नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये वो रेफरेंस है जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुका हूँ। जो एक दफा आपने साइट कर दिया उसको साइटेड में से उठाना है, जो साइट नहीं किया उसको माई लाइब्रेरी में से उठाना है। जो हाँ उनके साथ दो ऑप्शन है। नहीं नहीं, आपने सिर्फ वो कोड करना जहाँ से आपने दिया, दूसरा कहीं से, हाँ उनको कोड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सेल्फ साइटेशन है, हो सकती है। देखिए बाज़ औक़ात कुछ लेबोरेटरीज होती है ना, उसमें इस तरह का काम होता है कि वो एक सीक्वेंस में लेके चलते हैं काम को, कि ये किया, ये किया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो वो पीछे पूरी ट्रेन को शो करवाता है कि ये हमारा ही काम है, हमने किया था ये साइटेशन। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि इन साइटेशंस का स्टाइल, मैंने बताया था कि हर पेपर का डिफरेंट है, हर जर्नल का डिफरेंट स्टाइल होता है। तो उसका क्या तरीका है, उसके अंदर आपने ये डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस का बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक किया, ये देखिए इसने आपके सामने स्टाइल खोल दी है, ठीक है।
मैं कहता हूँ कि जो नेचर का जर्नल है उसमें मैंने सबमिट करवाना है, उसको मैंने क्लिक किया, मैं इसको ओके करूंगा। ये देखें उसने इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दिया, 1 2 4 5 को सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। जो यहाँ पे तरीका था रेफरेंसेस ऐड करने का वो भी चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये तरीका है किस तरह तो डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस को खोला, यहाँ से जो आपका स्टाइल है उसको सिलेक्ट किया, ओके किया, वो अपडेट कर देगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि यहाँ पर बहुत लिमिटेड से दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बस ये 15 दिए हुए हैं। ठीक है, ये 15 डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं। जनरल हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे जनरल्स हैं, हर किसी का स्टाइल डिफरेंट है। अब क्या करें, तो उसका तरीका ये है कि आपने जोटेरो की जो स्टाइल्स हैं वो इंपोर्ट करना है। तो आपने खोलना है जोटेरो स्टाइल रेपोजिटरी। जोटेरो स्टाइल रेपोजिटरी इसको खोलना है। जोटेरो स्टाइल रेपोजिटरी को मैंने क्लिक किया। ये देखें यहाँ पर जो है ना आपके पास हजारों टाइप के जो है ना वो पड़े हुए होंगे। ये देखें इसको मैं ड्रैग करता जाऊंगा, ये चलते जा रहे हैं। अभी ये ए से जो स्टार्ट होते हैं जर्नल्स उनकी लिस्ट है, फिर उसके बाद जो बी से स्टार्ट होंगे उनकी लिस्ट आएगी, फिर सी की आएगी, बहुत लंबी लिस्ट है ये। इसमें हजारों स्टाइल्स हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने जो पेपर सबमिट करवाना है ना जिस जर्नल में, फर्ज करें उसका नाम है वाटर रिसर्च। जिस जर्नल में आपने अपना पेपर सबमिट करवाना है उसका नाम है वाटर रिसर्च। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ वाटर रिसर्च। ये देखें ये आ गया वाटर रिसर्च। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। उसके बाद वो कहता है ऐड साइटेशन स्टाइल टू जोटेरो। क्या मैं इसको स्टाइल को, ये जो वाला स्टाइल है वाटर रिसर्च जर्नल का, इसको जोटेरो के अंदर ऐड कर दूं। मैं कहता हूँ ओके। अब देखें वो कह रहा है इंस्टॉलिंग स्टाइल, ये हो गया ऐड। हाँ देखिए इस तरह के कामों के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। होता पता क्या है, इस तरह के काम को आप करके रिसर्च जर्नल में सबमिट करवा देते हैं ना, तो होता ये है कि जिस ऑथर ने, जैसे मिसाल के तौर पर मैं जो है ना फर्स्ट करने नीदरलैंड में बैठा हूँ, आपने काम किया, आपने जो है ना कोट नहीं किया, मैं अचानक मेरी नजरों से आपका पेपर गुजरता है, मैं कहूँगा यदि तो मेरा काम नहीं, तो कोड ही नहीं किया हुआ। मैं जर्नल को ईमेल करूँगा कि भी फलाने फलाने शख्स ने मेरा काम कोड तो की लिखा तो है अपने पेपर के अंदर, लेकिन मुझे उसने जो है ना एक्नॉलेज नहीं किया मेरे काम को, तो आपके अगेंस्ट केस हो सकता है। तो इसीलिए ये जो इस तरह की स्टडी करना होता है ना कि अपने दोस्त से रेफरेंस लेके डाल देना, ये नॉर्मली जो है प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। तो जो शुरू में देखें जो मैंने डेफिनेशन बताई थी ना उसकी एकेडमिक राइटिंग की, उसके अंदर सारी ये चीजें मौजूद थी। ठीक है ना, तो वेल सोर्स भी इसके अंदर एक लफ्ज़ है कि वेल सोर्स होना चाहिए, आपको सोर्स पता होना चाहिए कि कहाँ से मैंने ये लिया। ओके, ये देखें ये आपने गूगल खोला, गूगल के अंदर आपने सिर्फ लिखना है जोटेरो स्टाइल रेपोजिटरी। ये इसको आपने जोटेरो स्टाइल रेपोजिटरी आ गया, इसको क्लिक किया, ये आ गई आपके सामने रेपोजिटरी। देखिए आपके पास जो जोटेरो के अंदर अपने बिल्ट इन स्टाइल्स है ना, बिल्ट इन स्टाइल्स वो टोटल 15 है बस। जोटेरो के अपने जो बिल्ट इन स्टाइल्स है वो 15 है, लेकिन जिस जर्नल में आप पेपर सबमिट करवाना चाह रहे हैं उसका स्टाइल इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं कि स्टाइल रेपोजिटरी को ओपन करेंगे, यहाँ से आप जो है ना मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जर्नल ऑफ मेम्ब्रेन, ये देखें जर्नल ऑफ मेम्ब्रेन साइंस, इस जर्नल में आप अपना पेपर सबमिट करवाना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो जर्नल ऑफ मेम्ब्रेन साइंस है ना, इसका स्टाइल जो है साइटेशन और
रेफरेंसेस का, वो जोटेरो के अंदर मौजूद नहीं है। ये देखिए मैंने जोटेरो खोला ना, इसके अंदर जर्नल ऑफ मेम्ब्रेन साइंस का कहीं भी जिक्र नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जर्नल ऑफ मेम्ब्रेन साइंस को क्लिक करेंगे, ये पूछता है कि ये साइटेशन स्टाइल जो है जर्नल ऑफ मेम्ब्रेन साइंस का, क्या मैं इसको जोटेरो के अंदर ऐड कर दूं? मैं कहता हूँ ओके। ये देखें अब वो खुद बता रहा है कि इंस्टॉलिंग स्टाइल, ये देखें हो गया इंस्टॉल उसके अंदर। अब क्या होगा, अब आपने जोटेरो को ओपन किया, सॉरी आपका वर्ड डॉक्यूमेंट ये रहा, डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस, इधर देखें कि ये देखें वाटर रिसर्च का भी मैंने ऐड किया था और जर्नल ऑफ मेम्ब्रेन साइंस का भी किया था। इसको क्लिक किया, जर्नल ऑफ मेम्ब्रेन साइंस को ओके किया, ये देखें उसने चेंज कर दिया स्टाइल। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैंने ये पेपर जो है ना वाटर रिसर्च के अंदर सबमिट करवाना था, इसको क्लिक किया, ओके किया, तो ये देखें उनके स्टाइल के मुताबिक बन गया सारा। ठीक है, ये साइटेशन स्टाइल्स हैं। तो ये हमारा था सारा जोटेरो का मेन काम के जोटेरो से हम इंस्टॉलेशन से लेकर साइटेशन इंपोर्ट करने के मेथड और उसके बाद इसको अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर यूज करना। अब इसमें से आप अगर चाहें तो अभी टाइम है हमारे पास तकरीबन जो है ना 40-45 आधे घंटे के करीब है। आप इसको अपने कंप्यूटर के ऊपर जो आपकी वर्ड फाइल है ना उसको खोलकर उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट अपनी मर्जी से लिखें और जो ना जो आपने अगर 2-4 रेफरेंस ऐड किए हैं उसकी प्रैक्टिस करके देखें। अगर कोई इश्यूज आते हैं मैं आपके साथ जो है ना डिस्कस कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जो आपने पढ़ा है ना जहाँ से आपने उसका देना है। उसने भी देखे आगे कोट किया हुआ होगा कि मैंने तो यहाँ से लिया था, उधर नहीं जाना आपने। आपने सिर्फ जो खुद पढ़ा आपने उसको मेंशन करना है अपने पेपर में, बस। बेशक किसी का भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस उसी को अगर उस आर्टिकल के अंदर देखिए ये लिखा है ना कि ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने फलानी जगह से ली थी, आपने फलानी जगह पे नहीं जाना, आपने इसी से कि मैंने तो यहाँ से पढ़ा है। वो issue। क्योंकि देखिए आपने जिसको एक्नॉलेज किया है ना वो ऑलरेडी उसके काम को एक्नॉलेज कर चुका है। इसकी देखें ये सॉफ्टवेयर के हवाले से मेरा जो अपना सारा काम रहा है थ्रू वो सारा सॉफ्टवेयर का यूज, मॉडलिंग, सिमुलेशन, सॉफ्टवेयर देख कर सीखने से लगता है कि मुझे आ गया, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो और चीज़ निकलती है। तो थोड़ी सी इसकी अगर आप प्रैक्टिस करें, अगर कोई प्रॉब्लम है मैं यहीं पे हूँ उसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपने ये करना है कि कुछ रेफरेंसेस जो है ना वो ऐड करें लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, no issue। ठीक है, हो जाएगा ना। आप एमएस करिए, पीएचडी किस जगह पे? अच्छा हाँ, तो आप जो है ना क्या कहते हैं जब भी कोई इशू है, नो इशू। मैं केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो मैकेनिकल बिल्डिंग उसमें होता हूँ। डॉक्टर आमिर नाम है, फोन नंबर ले लें मेरा बेशक, आमिर। कोई इशू हो जोटेरो से हम के हवाले से आप आ जाएंगे। amir@kfu.edu.in, आमिर AAMIR।
मेरी है अराउंड 5 महीने मेरी। आप जिस लोगों से मिलकर मोटिवेट होते हैं और हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम हर वीक ये सोचते हैं कि छोड़ दें, मैनेज नहीं होता लेकिन जॉब ये मसला है, क्योंकि जब हमने पीएचडी की हमने भी इंडिया से हमें तो स्कॉलरशिप मिला था, इसलिए हमें इसी की टेंशन है कि मैंने अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट की। जॉब करते हैं, ट्रैवल करते हैं। भाई हाँ हम सर यहाँ पीएचडी एजुकेशन के ही पास करते हैं। सेकंड टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको। सर आपकी डेजिग्नेशन और आपकी फैकल्टी प्रोफेसर जब हम बिजनेस करेंगे तो आपसे नहीं अभी आर्टिकल वगैरह भी हमारे सर आपको अभी तक नहीं है, लेकिन सोच तो होगा। अवेलेबल होता है ना लेक्चर कभी वहाँ पर तो होंगे इंशाल्लाह। यूट्यूब भी बना देते हैं हाँ आप एटीट्यूड और इंग्लिश है। आप मेरा फ़ोन नंबर ले लो, व्हाट्सएप कर दो। ईमेल पे वो मुझे पता है कि मैं रिप्लाई में आपको इसलिए नहीं करूँगा। 30904040। बचा के दिया जितनी डायरेक्ट एक्सटेंशन आई हुई है हमारे पास ये नहीं है। आप इंस्टॉलेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है असल में, लेकिन उनका आपको दिखा रहा है ये जो इधर कंप्यूटर लगा है ना, ये हैं सारे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स। लॉगिन नहीं हुआ मुझे भी यही चीज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली ये जो इसका इंस्टॉलर है ना, इसके साथ बिल्ट इन है। जैसे एंड नोट इधर आ जाता है वैसे भी बस ये थैंक यू।
यार कहता ना कर ना कभी कभी दे इधर मेरा दोस्त है मुसलमाना ने परेड आप साथ आ जाना मैं तो आपको मैं आपको हमें 2 मिनट होगा ना आप अमले से मिलवा करेक्ट है ना मैं आपको अमले से मिलवा दूंगा मैं ऐसे समझेगा कि देख कैसे गेम मतलब जेड़ा तो मैं आपको मिलवा दूंगा मत को करेगा तो राज को भाई आ रहा मैं तो हाजिर मैं नाच का मिलवा दूंगा कहना मैं आपको ना वहाँ पे अमले से मिलवा दूंगा साडा ही काम नहीं है दूसरा भैया को बोलना माफ करें डिपार्टमेंट हाँ आप इंडिया लैंड वाला पता टॉप पे आ गया लैंड वाले को जो बोल क्या रात तो फिर रिजल्ट ना सबमिट करा दे तो पूरा नंबर ट्रैवल एंड करंट तारीख का itu kamu kita hubungan dengan bilang semua हमारा जमा इधर हमारे नो नो कोई इशू नहीं है अब माउस होता है माउस होता है I will ask the government to see sound system that
सर
मैडम को मैंने तो सेटअप करना था बैंक का आपको कॉपी करना चारों और मैंने को आपका नाम मैंने का आपको करना आपको तो आपका लैपटॉप में जो डाटा पड़ा चलती तो भैया यार हेलो चलती तो भैया यार मेरे को पीछे ओपन हो रही एक मिनट चला यार ओपन हो गई मेरे को नहीं हुई है डोवर में लगना मैं कुछ भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया पूरी की वजह से कुछ भी नहीं किया मैं बस लगाई है चेक की मैं चलती रही मैंने तो क्या होता घर भी कुछ भी नहीं किया कसम ना कुछ नहीं किया फिर एडिट हो गया चार से ज्यादा